آج کیا ہے؟ مدرس ڈے. بہت اچھا. تو مائیں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں. ذرا ایک دفعہ زوردار کلیپنگ کریں ان کے لیے. آئیے کتاب مقدس میں سے نکالیے عہد عتیق میں سے امثال کی کتاب، اس کا 31واں باب. امثال کی کتاب اس کا 31واں باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک، اور پھر 27ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک. امثال کی کتاب اس کا 31واں باب، اس کی 10ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک، اور پھر 27ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک کلام پاک میں مرقوم ہے. نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے؟ کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے. اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اسے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. 27ویں آیت سے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی. اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آئیے ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں. خداوند مہربان بزرگ آسمانی باپ، تو جو ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پروردگار، ہمارا ربی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے کہ جب خداوند عورتوں کے لیے سیلیبریشن کی جا رہی ہے. خداوند آج کا یہ کلام تیری ان بیٹیوں کے لیے بابرکت ہو، تیرے بیٹوں کے لیے بھی بابرکت ہو. خداوند خدا، میں اپنے آپ کو بھی تیری پاک حضوری میں چھپاتی ہوں. میری کمزوریوں کا چارہ کرنا. بولنے والی میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح ہو. یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آمین. خاندان کا آغاز باغ عدن میں ہوا. جب آدم کو بنایا گیا اور پھر اس کی پسلیوں میں سے پسلی لی گئی، گوشت میں سے گوشت لیا گیا اور حوا کو پیدا کیا گیا. اب خدا اگر چاہتا تو آدم کی دماغ کی ہڈی سے بھی اس کو بنا سکتا تھا، اس کے پاؤں کی ہڈی سے بھی بنا سکتا تھا. لیکن خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس کی پسلیوں میں سے پسلی لی اور گوشت میں سے گوشت لیا، یعنی اس کو برابری کا ایکول رائٹ دیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں عورت تو ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے. خدا نے تو پیدائش کی کتاب میں کہیں پہ بھی اس کو کم عقل نہیں کہا، کہیں پر بھی اس کی ناقص عقل کا بیان نہیں کیا، اور کہیں پر بھی خدا نے نہیں کہا کہ اس کی عقل جو ہے اس کے گھٹنوں میں ہے، اس کی چٹیا میں ہے. کہیں آپ کو بیان نہیں ملتا. خدا نے اس کو مرد کا مددگار بنایا ہے. خدا نے اس کو تخلیقی پاور دی ہے، وہ اولاد جنتی ہے. اور یاد رکھیں، تخلیق کا عمل جو ہے، تخلیق کا کام جو ہے، یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. خدا تخلیق کار ہے. اس نے اپنی کائنات کو بنایا، وجود بخشا، انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا اور دکھ سہا. نوح کے زمانے میں بھی دکھ سہا،
इंसान बेवफा हुआ, खुदा ने दुख सहा। आदम और हवा ने बेवफाई की, खुदा दुखी हुआ। और माँ जब औलाद जनती है तो वो दुख से गुजरती है, वो तकलीफ और करब से गुजरती है और मौत के मुंह को छू कर आती है, कहीं तो वापस ही नहीं आती। ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि डॉक्टर्स जवाब दे जाते हैं। लेकिन माँ क्या सोचती है, मेरी औलाद को इस दुनिया में आना है। जब वो औरत कंसीव करती है तो उसी दिन से उसकी जिम्मेदारियों का आगाज शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बाबरकत हो जाती है, उस पर जिम्मेदारी आ जाती है तकलीफ की। वो अपने वतन में उस औलाद की हिफाजत शुरू कर देती है। वो अपने वतन में खुदा से दुआ करती है कि खुदावन, जो औलाद तू मुझे देने को है, इसको जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर मुकम्मल पैदा करना। मेरे बेटे में, मेरी बेटी में कोई बदनी कमजोरी, ज़हनी कमजोरी ना हो। माँ होना आसान नहीं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है माँ की जिम्मेदारियों में इजाफा होता चला जाता है और माँ खुशी से अपने घर के इंतजामात करती है, अपने बच्चों को पालती है। छोटा होता है, 4 माह का होता है, उसके लिए कोशिश करती है कि उसको ऐसा खाना दे जिससे वो बच्चा सेहत पाए, मोटा ताजा हो जाए, और उसको देख के फिर खुश होती है। माँ बाप जैसी मोहब्बत दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बाप अपना आप बच्चे पर इन्वेस्ट करते हैं, वो तिजारत करते हैं, अपना रुपया पैसा बच्चे पर लगाते हैं, खुद अपनी आसाइश का ख्याल नहीं करते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारी औलाद को हर किस्म की आसाइश मिले, हमारे बच्चे में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, हमारा बच्चा हर तरह से सोसाइटी में मूव करना चाहिए। माँ बाप इन्वेस्ट करते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, उसको अच्छे कपड़े पहनाते हैं, खुद चाहे उस तरह की आसाइशें ना ले, लेकिन वो इन्वेस्ट करते जाते हैं और खुश होते हैं। और उनकी इन्वेस्टमेंट का जवाब उनको क्या मिलता है? अब्बा बैजा तेनू की पता है, अम्मा बैजा तेनू की पता है। खुदा का कलाम कहता है अपनी माँ की और बाप की इज्जत कर, ताकि जमीन पर तेरी उम्र दराज हो। वो औलाद जिनको माँ जनती है, बाप खिलाता है, बाप जरूरियात पूरी करता है, वही औलाद उठकर उनकी तौहीन करती है, उनको नजरअंदाज करती है और उनको कहते हैं कि चुप करके एक साइड पे बह जा। क्यों? आज वो माँ बाप बेवकूफ हैं, आज उनको समझ नहीं है। क्यों समझ नहीं है? क्योंकि आपने उनकी समझ जो है वो खत्म कर दी है, आपने जज्बाती तौर पर उनको तोड़ दिया है। वो आपको कुछ नहीं कहते, सिर्फ खाली आंखों से आपको देखते हैं। लेकिन जब औलाद दुख में होती है तो माँ बाप के दिल से उसके लिए दुआ निकलती है, चाहे औलाद उनको पूछे या ना पूछे, औलाद उनकी कदर करे या ना करे। बहुत से लोग हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी औलाद हमें नजरअंदाज करती है, हमारी औलाद का रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं है। तो क्या आपके माँ बाप बड़े खुश होते हैं? वो जीते जागते जिंदा लाशें होती हैं, उनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं, वो जिस्मानी रूहानी तौर पर टूट जाते हैं। मैं समझती हूँ यहाँ पर बहुओं का बड़ा एक किरदार है। आप यहाँ देखिए कि नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी कदर मरजान से भी बहुत ज्यादा, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। अब एक औरत जो है दिलो जान से अपने घराने की खिदमत करती है। जो निवाले आप खाते हैं ना, वो दुआओं में लिपटे हुए होते हैं, एक एक निवाले पर दुआ हुई होती है, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए। वो एक फौजी की तरह अपने घर की निगहबानी करते हैं, मियाँ और बीवी। मैं यहाँ पर सिर्फ औरत का ही जिक्र नहीं करूंगी, दोनों के काम, दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चों की निगहबानी करते हैं, मुहाफजत करते हैं और चलते फिरते हुए उनके लिए दुआएं करते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती है। अब नेकोकार बीवी जो है उस शख्स को मिलती है जो खुदा से डरता है, बदी से दूर रहता है। ऐसी बीवी जो है तोहफा है, और ऐसा शौहर भी औरत के लिए तोहफा है। दोनों एक दूसरे के लिए खुदा की तरफ से गिफ्ट्स हैं। तो नेकोकार बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं? वो रिश्तों को निभाती है। अगर सास ससुर है, अगर बेटा ख्याल नहीं ना करता, तो वो अपने शौहर की तरबियत करती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की तो बहू जो है वो कदर करती ही है, लेकिन अगर बेटा नहीं कदर करेगा तो उसकी बीवी भी कदर नहीं करेगी। जरूरत इस बात की है कि बेटों को हर रिश्ते को अपनी जगह देनी चाहिए। माँ बाप बहुत कीमती होते हैं, जब वो जिंदा है इस दुनिया में उनकी कदर करें। उनको क्या चाहिए? आपका वक्त, थोड़ी सी आपकी तवज्जो, वो और कुछ नहीं मांगते आपसे, क्योंकि वो तो पहले शहंशाह हैं, उन्होंने बहुत पैसा देखा है। वो आपसे क्या चाहेंगे? वो सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहते हैं। बाद में ऐसे बच्चे नाफरमान औलाद जो है वो रोती है, कब्रों पे जा जाके फूल चढ़ाती है। ऐसे फूलों का कोई फायदा नहीं है, मट्टी की ढेरी पर जाने का भी कोई फायदा नहीं है। जब तक आप जिंदा हैं अपने किरदार को निभाएं कि आप क्या कर रहे हैं। हम अगर युकबत की बात करें, जो मूसा की मां थी, बड़ी दलेर औरत थी। बादशाह ने कहा कि इस्राएली लड़के अगर पैदा हो तो उन्हें पानी में बहा दिया जाए, लेकिन उसने क्या किया? वो बादशाह से नहीं डरी, उसने अपनी औलाद की हिफाजत की। वो मर सकती थी, बादशाह उसको अजियत दे सकता था, पूरे घराने को मार सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने बच्चे को पानी में बहाया, यानी मूसा को। वो डरी नहीं, लेकिन उसके लिए दुआ करती रही। दुआ गो औरत थी, और उसके तीनों बच्चे जो थे वो लीडर बने। मूसा, हारून और मरियम, तीनों बच्चे लीडर थे। हमारी माएं आज अगर खुदा की हजूरी में डरते और कांपते हुए अपने बच्चों की तरबियत करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माएं दो तरह की हैं, दानिशमंद, अक्लमंद, और दूसरी लापरवाह और बेवकूफ। जो दानिशमंद औरतें होती हैं वो हर वक्त खुदा से डरती हैं, अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करती हैं जिस राह पर उनको चलना होता है। तो खुदा भी उनकी औलाद को बरकत देता है। उनके घर पर देखें, उनके घर खूबसूरत होंगे, उनकी हर चीज करीने से पड़ी होगी, उसके बच्चों का लिबास खूबसूरत होगा, उसके शौहर का लिबास खूबसूरत होगा, वो खुद भी अच्छे तरीके से बने संवरेगी। ये है दानिशमंद औरत, और थोड़े पैसों में भी वो गुजारा करेगी।